Okay, so good morning, students. Today we are going for the chapter number 4. Right now, before proceeding, chapter number 4, we have something like to share with you. That is nothing but our IOE subject theory as well as lab sessions and their objectives, their CUs, PUs, and what are the other things, right? Because all the students, they are aware of that it may be possible that within the next month, the first week or second week of April, the NBA may be visit, right, in our college. So during that period, it may happen that the people from NBA, they may interact with you, and they will ask certain questions regarding the subjects, regarding the subjects, CUs, PUs, and whatever things are there. So as far as my subject is concerned and our department is concerned, so HOD has already told us that please tell the students what are the CUs, what do you mean by CUs, what do you mean by PUs, right? How can you map CU PUs, and what are the things are there, why these things are important, and what is something called as OBE. OBE is something called as outcome-based education. So whatever you are undergoing this particular undergraduate course, the details and the other things that you should know it in detail, so that any type of questions are asked to you. Not only that, there are something called as POs, like graduate attributes. So what are the graduate attributes? After becoming a BE, what are the different 12 graduate attributes that students should know it. So this type of things must be over there, and you must know it. That is a mandatory criteria. The students must aware of the CUs, PUs, how you are defining CUs, how you are defining PUs, how you are going to map CUs and PUs, right? How to how you are coming to know the outcomes of each of the CUs. How can we come to know, and how can we come to know that for each semester what type of things that we got it, like a skill or whatever is there. And after becoming a graduate, if you fulfill this particular 12 graduate attributes, then it's a Washington Accords norms that you got the 12 graduate attributes. So within 80 countries throughout the world, you are eligible for doing your MS, or you are doing your jobs, right? So these are something called as Washington Accords that the NBA is following. NBA is nothing but a National Board of Accreditation body. It's a professional body in our India, right? This body designed, right, the something called as a program objectives. Now these program outcomes. Now once we are saying the program, we all of us knows what is the meaning of program. Program is nothing but a department, you can say. So IT is a program, computer is a program, civil is a program, right? So whenever we are saying the program outcomes, that means what is the thing that you should come to get in your mind. That is something called as IT outcomes. After becoming an IT engineer, what kind of attributes that anyone should get, right, after becoming an IT engineer? So these are something called as what? The program outcomes. There is something called as course outcome. So once you are talking about a course is nothing but the subject, right? So IOE is nothing but a course. So course outcome. The course outcome is what? Course objectives and outcomes. Objectives means what? The teacher is teaching to you. That means we are setting some objective. What we are setting? Let's say my objective is to teach you, right, the fourth chapter, that is wireless sensor network. That is my objective. So what I will teach you. I will teach you something like what is the meaning of WSN, then what is node, what is network node, how the connecting nodes are communicate with each other, what are the different kinds of protocols in WSN, what kinds of applications where you can use it, the WSN, like that. Okay, so these are something like the course details
means the syllabus is given by the University of Mumbai, right, in each of the particular course module, subject module, like that. Okay, so we will discuss that in detail as I am discussing right from chapter number 1 to chapter number 3. Now for the chapters 2, we have got chapter number 4, 5, 6. So these 3 chapters that we will discuss like this only. So something like, you know, the course details, the course module, right? And this is something objective that I will say it after, you know, after learning this particular course details, what kind of outcome that you will satisfied. Now there are something called as two kinds of the levels, like we are taking it as an assessment level. दो चीजें हैं, एक तो आपको इंटरनल टर्म टेस्ट और हम लोग जो बोलते हैं IA1 और IA2. तो our CO, let's say this is our chapter 4, it relates to CO3. CO3 से रिलेटेड है. अभी CO3 कैसे है, क्या है, that we will discuss. तो let's say it is related to CO3, right? Now you should come to know, अभी ये जो CO3 है, ये मैं कैसे बोलूँगा कि उसका आउटकम फुलफिल हो गया, राइट? मैंने आपको ऑब्जेक्टिव रखा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये सिखाने का है, आपको मुझे नोड यानी क्या सिखाने का है, मुझे आपको कनेक्टिव नोड यानी क्या सिखाने का है, मुझे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सिखाने का है. सो व्हाट एवर द डिटेल्स आर गिवन बाय द सिलेबस, that I am focusing, I am making the set of outcomes, and there are some two types of outcome. One is something called direct outcome and indirect outcome. Direct means what, कि अगर आपको ये CO3 में अगर आपको आउट ऑफ 10, लेट्स से आपका 20 मार्क का एग्जाम है टेस्ट 2, 10 में से आपको 10 मिला और 9 मिला और 8 मिला और 7 मिला, व्हाट इज देयर. तो 65 स्टूडेंट्स है अपने क्लास में, तो 65 में से कितने जन को कितना मार्क्स मिला, सो दैट डिफाइंस योर आउटकम, डायरेक्ट आउटकम. सो डायरेक्ट आउटकम मालूम पड़ता है, इसमें बहुत जन को 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे, बहुत जन को 9 मिलेंगे, 7 मिलेंगे और बहुत जन को 1-2 भी मिलेंगे. सो वी आर नॉट नोइंग, सो इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्ट आउटकम. डायरेक्ट आउटकम इधर से मालूम पड़ता है. नेक्स्ट आउटकम क्या मालूम पड़ता है, यूनिवर्सिटी पेपर. तो 80 मार्क्स है, तो 80 मार्क्स में भी जो थर्ड CO जो है हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उसमें भी मुझे मालूम पड़ता है कि भाई आपको आउट ऑफ 80 कितने जन को कितना मिला, राइट? और उसका एनालिसिस क्या, तो यू विल कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा, व्हाट काइंड ऑफ आउटकम्स दैट यू फुलफिल, बिकॉज यू आर द पर्सन्स हु आर गोइंग टू गिव अस द रिजल्ट्स, यू आर द पर्सन्स हु satisfied that something called as outcomes. आपने अगर आउटकम सेटिस्फाई किया, राइट, तो मालूम पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो गया. मैंने बोला कि मेरा ऑब्जेक्टिव है बहुत ही हाई लेवल का, एप्लीकेशंस और WSN आपको आना ही चाहिए, बराबर. और एप्लीकेशंस और ऐसे WSN के टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी में आ गए और IA2 में आ गए, राइट. और बाद में पता चला कि आपको IA2 में कम मार्क है और यूनिवर्सिटी के पेपर में ही कम मार्क है, तो पता चलता है कि भाई आउटकम सेटिस्फाई हुआ ही नहीं है, राइट. ऑब्जेक्टिव रखा, ये करना चाहिए, लेकिन ये हुआ ही नहीं है बिकॉज स्टूडेंट को मालूम ही नहीं है, राइट. ये तो हो गया थ्योरी. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड स्किल, प्रैक्टिकल में कितना मैं कितना भी इधर से बोल सकता हूँ, स्टूडेंट को RFID, रास्पबेरी पाई से कम्युनिकेशन करना आना चाहिए. आर यू गेटिंग? सो लेट्स से दिस आउटकम इफ आई पुट ऑब्जेक्टिव, राइट. और अब मैंने अभी आपको थ्योरी में भी डाला था कि ये कनेक्शन करो, इंटरफेस करो, even though you achieved it, but it's like a theoretical one, you know. I cannot check your practical skill कि सचमुच आपको वायर पकड़ने को आता है क्या, लगाने को आता है क्या. I am not knowing because मैंने आपको देखा ही नहीं है वायर लगाते. आर यू गेटिंग? ये तो आपने थ्योरी में डाला है, थ्योरी में आप किधर से भी छप सकते हो, किसको भी कितना भी मार्क मिल सकता है, everybody can get 10 out of 10, right? But this is like the, you know, outcome that I am setting for IOE lab. So IOE lab का objectives outcomes अलग है, IOE सब्जेक्ट का आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव अलग है, राइट. दोनों अलग अलग कैटेगरीज हम लोग ने किया है, राइट. बिकॉज यूनिवर्सिटी का कोड ही अलग अलग है. कोर्स कोड अगर आपने देखा, सिलेबस का स्ट्रक्चर देखा, उसमें आपको मालूम पड़ता है कि IOE थ्योरी उसका कोर्स कोड अलग है, IOE लैब उसका कोर्स कोड अलग है. यानी हम लोग जब भी आपका मार्क्स भी यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं तभी अलग अलग करते हैं, थ्योरी का अलग करते हैं, लैब का अलग करते हैं. इवन दो द सब्जेक्ट टाइटल इज सेम IOE,
लेकिन बिकॉज ऑफ द कोर्स कोड आर डिफरेंट, देयर ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, देयर आउटकम्स आर डिफरेंट, ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, आउटकम्स आर डिफरेंट। थोड़ा बहुत सेम है, यानी क्या, इधर मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये लोग को आना चाहिए, लेकिन थ्योरी में दिखा है तो इसका आउटकम सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में हाउ कैन आई चेक यूर वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ द प्रैक्टिकल यू आर सेटिस्फाइंग और नो आई एम नॉट डूइंग। अभी ऑनलाइन में तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। अभी ऑनलाइन में हर एक के घर पे रास्पबेरी पे, हर एक के घर पे आर्डिनो यूनो तो हो ही नहीं सकता है, RFID नहीं हो सकता है, आई कैन नॉट चेक। अभी मुझे लगा कि चलो आकांक्षा ने बोला कि सर मुझे ये आता है, तो मैं आई कैन नॉट से कि सर आपका कैमरा ऑन करो, मुझे दिखाओ कैसे होता है, तो ऐसा हर एक को चेक करना तो जाएगा ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू नो, टू चेक लाइक दिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दैट्स व्हाई वी आर टारगेटिंग टू सेट द आउटकम फॉर IoE लैब एज आवर मिनी प्रोजेक्ट। तो लेट्स फाइंड आउट इन द मिनी प्रोजेक्ट। तो मिनी प्रोजेक्ट में आपने एक एक क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। सो वन बाय वन, यू नो, द ऑब्जेक्टिव्स आई हैव सेट कि आपने मिनी प्रोजेक्ट में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को आना चाहिए, आपको हार्डवेयर का कनेक्शन आना चाहिए, आपको क्लाउड का ये आना चाहिए, आपको मोबिलिटी, मोबाइल का डेवलपमेंट जो भी है, वॉट एवर, यू नो, द फ्रंट पेज वॉट एवर इज देयर, तो वो आना चाहिए आपको डेटा एनालिटिक्स का थोड़ा बहुत चीज़ें आना चाहिए, राइट। सो समथिंग लाइक इफ यू सेटिस्फाइड दैट, देन आई कैन से दैट वो आउटकम सेटिस्फाई हो गया, right? So there are two kinds of sets. Again, I'm repeating, you know, for IoE theory and IoE lab, both are different. For IoE lab, you are having something called as a term work mark, right? And as well as your practical mark. Practical means oral marks. Oral, practical, and term work is given to your lab. Whereas IA1, IA2 average and theory mark is given for your IoE theory. राइट। अभी ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका सिलेबस। आपके सिलेबस में इफ यू सी द स्ट्रक्चर फर्स्ट पेज ऑफ योर सिलेबस, देन यू विल कम टू नो कि भाई ये सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, वो सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है। इवन दो यू आर स्टडीइंग IoE, बट स्टिल बोथ द ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, बोथ द आउटकम्स आर डिफरेंट, राइट। सो कोर्स कोड इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वैसा आपका BDI का भी रहेगा, वैसा आपका हर एक सब्जेक्ट का रहेगा। Why I'm discussing, again I'm repeating that why I'm recording this session, because this session is going to be a very very important session for all of us, not only you people, because from all of faculties also, because you people are going to answer to the MBA committee, because they will ask you, बोलो आपका कौन सा CO चालू है। सपोज अप्रैल का सेकंड वीक में अगर आ गए और उन्होंने पूछा कि आपका कौन सा CO के ऊपर आप लोग सीख रहे हैं, तो आपने कभी टर्म ही सुना नहीं रहेगा भाई CO क्या होता है, और किसी को भी ऐसा नाम लेके बोलेंगे, चलो नीतू बोलो मुझे कि अभी अपना CO कौन सा चालू है, आपने कितना CO सीखा है, कितने CO है। बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द CO, आपको CO मालूम होना चाहिए। अब इधर आप रट्टा मारोगे क्या, हर एक सब्जेक्ट का रट्टा, कितना सब्जेक्ट का कितना CO बाहर करोगे, राइट। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव ऑलरेडी गिवन यू समथिंग कॉल्ड एज अवर वेबसाइट, उसमें मैंने CO पब्लिश किया है मेरा। तो आप बोलोगे फिर अगर ओपने ऐसा उल्टा फिगर करने को बोला कि सर आपने COs वगैरह शेयर किया है लेकिन आपने कभी दिखाया ही नहीं, राइट, समझ लेने का वापस मामला उल्टा हो जाएगा। सो एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं CO PO के ऊपर बोल रहा हूँ, बट नाउ आई एम स्पेशली आई एम टेलिंग यू रिगार्डिंग दिस, बिकॉज नाउ द टाइम हैज अराइव्ड वेयर द कमिटी इज गोइंग टू कम एंड यू एंड ऑल, नॉट ओनली यू, वी आर आंसरेबल। हम लोग को दोनों को मालूम होना चाहिए कि मैं क्या सेट कर रहा हूँ, आप क्या सेटिस्फाई कर रहे हो, आपका क्या आउटकम आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो, मैं कौन सा आउटकम आपको ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आपको क्या रखा है, अपना चैप्टर 4 है तो यू विल करते हो चैप्टर 4 सिखा रहे सर, फाइन, लेकिन चैप्टर 4 कौन सी CO को मैप है, आपको पहले कितना CO है वही मालूम नहीं रहेगा, तो कौन से CO का मैप है, वो किधर आता है, कौन से चैप्टर में आता है, ये CO PO के कौन से मैप है, तो फिर PO कितने हैं, PO कितने वही मालूम नहीं रहेगा। PSO, देयर इज समथिंग कॉल्ड PSO, यू नो व्हाट इज PSO, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी IT डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हुआ तो स्पेसिफिकली 3 आउटकम है अपने, एंड POs अगर बोले तो 12 POs है। अभी क्या है क्या नहीं ये अभी मैं आपको ये लेक्चर में पूरा बताने वाला हूँ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अभी हर एक लेक्चर में नाउ अगेन एंड अगेन लेक्चर में मैं बार बार ये सब चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, इसके लिए ये लेक्चर में पूरा रिकॉर्डिंग करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग ये सब यूज क्या है सब देख सकते हैं। ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन
So please look at it very carefully. And as a BE student, definitely the people are going to ask you, right? Because this must be there right from your first semester, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, 8 सेमेस्टर में आपने कितना सब्जेक्ट सीखा, कितना क्या क्या था। अभी हर एक सब्जेक्ट हम लोग आपको नहीं पूछेंगे, एटलीस्ट करंट सेमेस्टर। अभी आप कौन से सेमेस्टर में हो? 8 सेमेस्टर। तो 8 सेमेस्टर में कितना सब्जेक्ट है, यूज कितना है, सीओ क्या है, कौन सा किसको मैप किया है, क्यों किया है मैप, वजह क्या है मैप करने का, और ये करके क्या मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग ने नाम दिया है, हम लोग ने एनबीए ने नाम दिया है, कॉल्ड एज OBE, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। आपका एजुकेशन कौन सा है? आउटकम बेस्ड है, प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है। अभी जो नया जो स्टूडेंट का जो स्ट्रीम, नया स्ट्रीम इन द सेंस नया जो सी स्कीम, यानी नए जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, जो आपके जूनियर है, जूनियर टू जूनियर, अभी थर्ड ईयर के भी नहीं, सेकेंड ईयर में जो लड़के हैं अभी अपने कॉलेज में, सेकेंड ईयर के लड़के, दे आर फॉलोइंग सी स्कीम, रिवाइज 19 सिलेबस। सो देयर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन PBE, प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन है उनका। हर एक सेमेस्टर में प्रोजेक्ट है उनको, हर एक सेमेस्टर में, राइट फ्रॉम सेकंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर से वो लोग का प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ऐसा। तो दैट एजुकेशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन। और आपका एजुकेशन कौन सा है? आउटकम बेस्ड एजुकेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, राइट। ये ध्यान में रखो। आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन यू आर लर्निंग, तो पहला आपका आंसर होना चाहिए OBE, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, राइट। समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ if I am going for our website, now I am thinking that you can able to see our whatever I am sharing. So can you see, Rahul? Yes, sir. It is visible. Okay. So now see, this is our website. All of us knows we can go to the our IT department. Let's focus on our IT department. Let's see. Try to remember whatever I am showing. Try to remember whatever I am showing, and daily you can just look at our this thing. First of all, you should know what is our vision and mission. हमारे डिपार्टमेंट का विजन क्या है, मिशन क्या है। एनीथिंग, वंस यू जॉइन एनी वन ऑफ एनी काइंड ऑफ कंपनी, जब भी ज्वाइन होते हैं तभी कंपनी का विजन मिशन क्या है वो मालूम होना चाहिए। बिकॉज यू पीपल विल विल सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर विजन को सर्टिफाई करने के लिए आप जिम्मेदार हो, बिकॉज यू आर एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर, राइट। अगर हम लोग ने फोकस किया कि भाई डिपार्टमेंट का छोड़ो, अपना कॉलेज का विजन मिशन क्या है पहले बोलो, तो लेट अस गो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कॉलेज विजन मिशन। ये सब स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, राइट, ये मालूम होना चाहिए। सी दिस इज आवर विजन एंड मिशन। ये कॉलेज का विजन मिशन है। कॉलेज क्या बोलता है? टू बी अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एमिंग एट becoming a valuable resource for industry and society, राइट। यानी कोई भी स्टूडेंट है, वो हमारा स्टूडेंट है, वो इतना अच्छा एजुकेशन उसने टेक्निकल लेना चाहिए कि भाई वो वैल्यूएबल होना चाहिए रिसोर्स, किसके लिए? इंडस्ट्री और सोसाइटी के लिए। ये है हमारा कॉलेज का विजन। एंड टू सेटिस्फाई दिस विजन, what kind of things, what is the something called mission, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलेज क्या कर रहा है? कॉलेज टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकली इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। पहला बात, यानी आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है कॉलेज ने, राइट। और टेक्नोलॉजिकली इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट, आपको CSI है, हैकेथॉन है, ये है, वो है, लाइक दैट, यू नो। तो ये सब आपको दिया है, टेक्नोलॉजिकली इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट है अपने कॉलेज का, तो आपको पढ़ाने के लिए दिया है। टू प्रमोट क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज। आपको बोलते चलो आविष्कार में आप ये सीखो, आप लोग पेपर प्रेजेंटेशन में उधर ये कॉन्फ्रेंस में जाओ, आपको मोटिवेट किया जाता है। आपको इनोवेशन यानी अगर किसी कोई रोबोट नया बना रहा है, अगर कोई पेटेंट जैसा कोई अलग काम कर रहा है, तो इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटीज यानी अपना CSI, राइट। तो इसके लिए हम लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं, यानी कॉलेज आपको प्रमोट कर रहा है, कॉलेज कर रहा है। दिस इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंट, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज विजन मिशन। तो उसमें आपका ISA, MESA, आयसा, मीन्स अलग अलग
चैप्टर्स भी आते हैं प्रोफेशनल लेवल में, टू इनकलकेट एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज। आपको कॉलेज में सिखाया जाता है कि एथिकल कैसे, फैकल्टी के साथ कैसे बिहेव करने का, राइट, ऑनेस्ट कैसे रहने का, हाउ यू आर गोइंग टू, दिस इज समथिंग कॉल्ड एथिकल एंड मोरल वैल्यूज, right, how you are going to talk with the society, in the society, how you are going to behave, so student behavior, right. For the girl side, gender equality, in the, you can say the, like human values, right. So these are something called as the, all these things the college is giving you the things. We have got something like the women's development, women's cell, right, which are going to protect the girls, right. Like that, like that, there are so many kinds of ethical and moral values that the college is giving to you. And last but not the least, to cater personal, professional and societal needs through to the quality education. आपको पर्सनल खुद का, प्रोफेशनल एंड सोसाइटी का, आपका खुद का, राइट, क्वालिटी एजुकेशन से आप क्या क्या कर सकते हो, यू कैन कैटर पर्सनल, प्रोफेशनल एज वेल एज सोसाइटल नीड्स, राइट। ये जो नीड्स है, सोसाइटी का नीड्स है, प्रोफेशनल का नीड्स है, यानी जिधर आप लोग काम कर रहे हो उनका नीड्स है, आपका खुद का नीड है, ये सब आप सेटिस्फाई कर रहे हो थ्रू क्वालिटी एजुकेशन. You are getting quality education in our college. So like that, so these are the missions. So this is how you can fulfill the college vision. To satisfy this vision, these are the missions. So ये हम लोग right from first year से आप करते आ रहे हो. ये हो गया कॉलेज का विजन मिशन. Now let's go to the डिपार्टमेंट्स विजन मिशन. डिपार्टमेंट का, हमारे आईटी डिपार्टमेंट का, यानी प्रोग्राम, अपना आईटी नहीं पता प्रोग्राम, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम. ये प्रोग्राम का क्या विजन मिशन है? तो हम लोग बोलते हैं, आईटी डिपार्टमेंट क्या बोलता है, टू फोस्टर एंड मेंटर एक्सलेंस बाय ओरिएंटिंग द राइट captivating minds of the aspiring engineers towards IT-driven technological solutions for the benefits of the society. राइट, यानी हम लोग का ये है कि हम लोग को ऐसे स्टूडेंट्स बनाने का है, ऐसे इंजीनियर्स बनाने का है कि जो IT ड्रिवन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ये बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी के लिए बना सकते हैं. राइट, तो दिस इज व्हाट इज द विजन ऑफ आवर आईटी. ये आईटी का विजन आपको पहला, यू कैन से, यू मे से दैट यू हैव टू बाय हार्ट दैट. ये फटाक से आपको बोलने को आना चाहिए. किसी को भी पूछा कि भाई अपना डिपार्टमेंट का विजन क्या है, कॉलेज का विजन क्या है, कॉलेज का मिशन क्या है, डिपार्टमेंट का मिशन देखते हैं हम लोग. टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन बाय एम्प्लॉइंग बेस्ट एंड डाइवर्सिफाइड टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड टूल्स एंड टीचिंग बियॉन्ड द कन्फाइन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी सिलेबस. यूनिवर्सिटी सिलेबस के बाहर जाके हम लोग पूरा आपको क्वालिटी एजुकेशन पढ़ा रहे हैं. राइट, एंड आई फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन प्रूव दैट, बिकॉज नॉट ओनली आई एम focusing only on the syllabus, but beyond the syllabus I am always teaching. Right, so not only my subject I am talking about, but the other faculties, they are also giving you not only the through the teaching purpose, but through the workshops, through the SDPs, all we are giving, the department is giving you. Then second mission is like this, to keep students abreast with latest technology advancement in the market. तो जैसे आपके इंटरनेट प्रोग्रामिंग में आपको खाली जावास्क्रिप्ट है, आपको खाली ये है, आपको खाली वो है. अभी जावास्क्रिप्ट ऐसा है, वो जूना वाला रहेगा, है ना, 2007 वाला. तो अभी 2007 के बाद में यू हैव गॉट नाउ जेएस. सो जावास्क्रिप्ट है, हाउ इट कन्वर्ट्स, यू नो व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन द मार्केट. सो यू शुड नो, लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको आना चाहिए नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस. सो everywhere you can see the JavaScript. So JavaScript, everybody knows it's a number one language throughout the world. Everybody should aware of that. So you should aware of all these technologies. Not only that, but in case of our IoE subject, Internet of Everything, these kind of subjects these are going to fulfill the need of the industry, because everybody knows, right? So IoT is one of the pillar in Industry 4.0. There are 9 pillars. So out of 9 pillars, IoT is also one of the biggest pillar in the industry.
right? So in IoT, in IoE subjects, not only we are sticking with the syllabus, but out of the syllabus, out of the box, we are doing so many things, right? But unfortunately, during this pandemic period, we cannot able to do a lot of things. But still, in case of IoT's mini project subject, like whatever I have given you, it's beyond the syllabus we taught, right? To prepare students to troubleshoot and solve IT problems. And this troubleshooting is very, very important. It's like you are debugging. In case of the software, you should know the term called as debugging, and everybody knows that, right? Troubleshooting. Once you are troubleshooting what, like some kinds of errors, related to hardware, related to software, and you are trying to solve the IT system problems. So I always tell the students to troubleshoot what circuit you are designing. I always tell what type of code you are written, how you are going to troubleshoot. Right. So these are something like the mission of our department. To satisfied with this particular vision, ये अपना आईटी बंदा जो है वो ऐसे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स अपने आईटी ड्रिवन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से सॉल्यूशन से बराबर से सॉल्व आना चाहिए, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, right? So this is the department vision. To fulfill this, we are having this mission, right? Second thing is very, very important. What we are discussing about the POs. ये देखो 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स है, दिस 12 ग्रेजुएट्स एट्रीब्यूट्स, ये 12 POs है। ये 12 POs किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं NBA ने, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन बॉडी। अभी उन्होंने भी कैसे बनाए हैं? उन्होंने भी वॉशिंगटन अकॉर्ड्स, जो यूएस में बहुत बड़ी प्रोफेशनल बॉडी है, और 80 मोर देन 80 कंट्रीज दे हैव एक्सेप्टेड दिस 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, राइट? उन्होंने ये 12 ग्रेजुएट उनसे लिया है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत उनका मॉडिफिकेशन करके, यानी वट एवर द वॉशिंगटन अकॉर्ड्स के जो इतने सारे एट्रीब्यूट्स है, 12 एट्रीब्यूट्स है, इसमें से उन्होंने थोड़ा सा उसको माइन्यूट चेंज करके अपने इंडिया में जितने जितने कॉलेजेस है AICTE एफिलिएटेड, जितने कॉलेजेस है, सब कॉलेजेस को ये PO दिए है। ये जो PO है, ये PO ले लो और ये PO के हिसाब से अपना ग्रेजुएट बनाओ, ऐसा उन्होंने हर एक कॉलेज को बोला, राइट? दिस इज द प्रोग्राम आउटकम्स, राइट? अभी ये प्रोग्राम आउटकम्स कैसे है? दिस 12 प्रोग्राम आउटकम्स आर कॉमन फॉर एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट, एनी डिपार्टमेंट। आप IT इंजीनियर बनने वाले हो, ये 12 ग्रेजुएट आने चाहिए। सिविल इंजीनियर बनने वाले हो, ये आना चाहिए आपको। आप विजेटिया से पास आउट होने वाले हो, तो भी ये 12 ग्रेजुएट्स आने वाले हैं। आप KG सोमैया से पास आउट होने वाले, तो भी आपको ये 12 ग्रेजुएट, ये जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हम लोग बोल रहे हैं POs, ये आपको यू शुड सेटिस्फाइड है। तो ये कौन से हैं? 12 POs है क्या? अभी 12 POs मैंने आपको बोला, ये 12 POs आए किधर से? NBA से आए। NBA को किधर से मिला? वॉशिंगटन अकॉर्ड से। अभी जो मिला तो कैन यू से हैव दे एडेप्टेड सेम एज फ्रॉम द वॉशिंगटन अकॉर्ड्स? नो, उन्होंने उनके तरफ से मॉडिफिकेशन किया है, और हम लोग को भी बोला है, कॉलेज को बोला है, प्रोग्राम को बोला है, इवन दो यू कैन ऑल्सो चेंज इट। लेकिन जो अभी 12 एट्रीब्यूट जो हम लोग को मिले हैं, जो हम लोगों ने एडप्ट किए हैं, वो इतने बड़े बड़े हैं और इतने परफेक्ट है कि हम लोग को मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ा। सो दैट्स व्हाई our college, our department, or like our department, all the departments in throughout India, all the colleges, they have accepted same this graduate attributes. Now let us look at the graduate attribute. पहला attribute क्या बोलता है कि स्टूडेंट को इंजीनियरिंग नॉलेज है क्या? Can he apply the knowledge of mathematics, science, computer engineering fundamentals, engineering specialization to solve the complex engineering problem? वो उसको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है क्या? वो अगर कर सकता है तो PO1 सेटिस्फाइड हो गया। अगर उसको नॉलेज है क्या मैथमेटिक्स का, साइंस का नॉलेज है क्या थोड़ा बहुत, तो वो इंजीनियरिंग नॉलेज, तो ये बेसिक हो गया ये। तो लाइक योर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, राइट? आपके जो सब्जेक्ट्स है मेन, केमिस्ट्री, BEE, all these subjects, first subjects, like for civil engineers it may happen that SPA subject, like these are the subjects through which you can say ये हम लोग ने पढ़े हैं, हम लोग को मार्क भी अच्छा मिला है, हम लोग को प्रॉब्लम भी सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। उसका मतलब है भाई आपने PO1 सेटिस्फाइड किया है। सेकंड क्या बोलते हैं? PO2 क्या है? PO2 का मतलब है प्रोग्राम एनालिसिस।
तो आपको एनालिसिस करने को आता है क्या? कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कैन यू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, राइट, कैन यू रिव्यू द रिसर्च लिटरेचर। आप तो अपनी प्रोजेक्ट के लिए तो रिसर्च आपने किया है ऑलरेडी, आपने आइडेंटिफाई किया है, राइट। कैन यू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स reaching sustained conclusion using the first principle of mathematics. Whatever you are doing the project, it has got some science, it has got some base, it has got some mathematical model, it has got some engineering statistics. So whatever is there, you did this, but have you satisfied that? Yes. Why? Because you are already fulfilling the project. अभी प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन जो नया है, अभी जैसे आईओई का मिनी प्रोजेक्ट है, तो हर एक प्रोजेक्ट में यू नो इट because you are identifying the problem, you are formulating the problem, you are doing the research literature, you are analyzing it based on whatever the things are available as a base of science. तो ये सेकंड भी पीओ आपने 100% सेटिस्फाई किया है। थर्ड क्या बोलता है? कैन यू डिजाइन द प्रॉब्लम्स, कैन यू डिजाइन द सोल्यूशन, नो प्रॉब्लम्स, कैन यू डिजाइन द सोल्यूशंस, डेवलपमेंट। तो थर्ड पीओ क्या बोलता है? यू शुड बी एबल टू डिजाइन द सोल्यूशंस, राइट, डिजाइन सिस्टम कंपोनेंट्स, राइट, जैसे यूएमएल डायग्राम हम लोग बोलते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, कैन यू एबल टू मीट satisfy needs with the appropriate consideration for the public health and safety and the cultural, societal, environmental considerations. So basically third PO क्या बोलता है? थर्ड PO is related to design. First is engineering mathematics or engineering knowledge, very basic thing. The second thing is problem analysis. So you can able to analyze the problem. Yes. थर्ड क्या है? You can able to design the solutions. आप लोग का algorithm खुद बना सकते हो। कोई प्रॉब्लम दिया है, उसका डिजाइन, लेआउट डिजाइनिंग, राइट, द फंक्शनल डिजाइनिंग, फ्लो डिजाइनिंग, व्हाट आर डिजाइनिंग्स आर देयर, सो दैट डिजाइनिंग यू कैन एबल टू डू इट। फोर्थ वन क्या है? ये करने के लिए कैन यू एबल टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम। तो इन्वेस्टिगेशन, ये क्यों आया, ये प्रॉब्लम कैसे आया, इसके पीछे और क्या है, राइट, इन्वेस्टिगेशन। उधर हम लोग डेटा एनालिटिक्स भी डाल सकते हैं। सो वी कैन जस्ट सी दिस, use a research-based knowledge, research methods, including design of experiments, analysis, interpretation of data, and synthesis. Synthesis यानी close connections of the information to provide valid conclusions. Right. So fourth one क्या है? Investigation. So investigation कर सकते हैं क्या आप complex problems का? So yes, कर सकते हैं। तो उसका मतलब है ये PO आपने satisfy किया। फिफ्थ वन क्या है? Modern tool usage. Are you aware of the modern tool usage? Yes. Let's consider this SEO plan, जैसे हम लोगों ने IP प्रोग्रामिंग में किया था और IP सब्जेक्ट में किया था इंटरनेट प्रोग्रामिंग में। SEO plans, you know the Google Analytics, you know the SEO keyword generations, keyword generation के tools है। Then let's say you should know the data mining का Weka tool है, और even though in our IOE subject there are Puja, Quantiky tools. So these are the modern usage tools. So are you aware of that? Yes. कैन यू डिज़ाइन दिस, कैन यू यूज इट इन अवर सब्जेक्ट। तो आपका अगर सब्जेक्ट को ये अगर पीओ मैप है, तो ये सीओ पीओ मैपिंग इधर हम लोग करते हैं। दिस इज लाइक दैट। तो फिफ्थ वन इज मॉडर्न यूसेज टूल। सिक्स वन क्या है कि इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी मीन्स व्हाट, कैन यू एबल टू सॉल्व द इंजीनियरिंग एंड सोसाइटल प्रॉब्लम, कैन यू अप्लाई द रीजनिंग इन्फॉर्म बाय द contextual knowledge to access societal health, safety, legal, cultural issues, and consequent responsibilities relevant to the professional engineering practice. And generally, you talk about sixth one is generally society related, right? आपका कोई subject रहेगा, it may be happen that the one of the subject is related to your only society, societal health and like your communication skill subject, you know, where you are going to communicate with the people, you are going to solve the problems with the people. राइट है। तो सोसाइटी आर जनरली फॉर अवर प्रोजेक्ट ऑल्सो, प्रोजेक्ट के लिए जैसे स्मार्ट पार्किंग, ईशा के ग्रुप और ईशा का ग्रुप है और तुम लोग का ग्रुप है, तुम लोगों ने क्या किया, लोगों से बात किया कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम है, तो ही हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। सो इट्स लाइक दैट। सो इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी, राइट, तो वो आपके अगर आता है आपको, यू शुड नो इट, हाउ कैन यू रिलेट दिस टू थिंग्स। यस, सो यू आर सेटिस्फाइंग PO 6। 7 क्या बोलते हैं कि एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। अभी एनवायरमेंट, like consider the environment, like the people are doing the agricultural project, you are doing something like environmental project, something like, so if you are doing like that,
then you can understand the impact of precision engineering solutions in environmental context. आपका प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी और एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट में, कैन यू एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ एंड द नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी जो हम लोग का जो कॉन्फ्रेंस अभी लास्ट वीक में हुआ उसका नाम ही था ग्लोबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इट्स लाइक अ ग्रीन आईटी। ग्रीन आईटी, ग्रीन आईटी यानी ग्रीन मोबाइल लिया और आईटी ऐसा नहीं, ग्रीन आईटी द मीनिंग इज दैट द पावर इज सस्टेनेबल, the mobile durability is sustainable, that kind of sustainable. So आपका your understanding, can you able to understand the impact of your whatever you are studying in your society and environmental context? If it is yes, so you are satisfying PO7. Next, consider 8. 8.1 is something called as ethics. Ethics यानी क्या? Let's say मैंने आपको असाइनमेंट दिया, राइट, और आपको मैंने बोला फॉलो द डेडलाइन, टुडे इज द डेडलाइन, यू आर गोइंग टू सबमिट इट, तो यू आर डूइंग द एथिक्स, आप एथिक्स फॉलो कर रहे हो, आप डेडलाइन फॉलो कर रहे हो, यू आर नॉट मिसिंग एनी डेडलाइन, राइट। नॉट ओनली दैट, यू आर नॉट चीटिंग समवन एल्स, आप चीटिंग नहीं कर रहे हो। आप किसी से, मैं बोलता हूँ कि आपको ओरिजिनलिटी आपका आना चाहिए, यू शुड राइट फ्रॉम योर ओन, you should not copy it from the net, you should not copy it from the friend, and you are doing that. So ethically, morally, you are doing it, right? You are not doing these things out of the box, right? So you are focusing your goal and you are following this ethics. So if you are following this, then you are satisfied. You ask yourself, अभी ये हम लोग how can I prove, आपने ethics follow किया कि नहीं? So obviously I will check the assignment, I will check the originality, I will check, अरे ये क्या कॉपी किया है। अभी जो आपका IA1 पेपर, राइट, सब के सब ने वही डायग्राम, वही सबथिंग, एवरीथिंग इज सेम, राइट। सो वेयर इज एथिक्स? एथिक्स क्या किधर, वो छोड़ो, वो भगवान जाने, वो बाद में हम बात करते हैं। 9th one, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क आप कर रहे हैं बिकॉज यू आर ऑलरेडी बीइंग अ टीम, राइट, यू आर डूइंग द मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट आप IUE सब्जेक्ट का कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, नॉट ओनली योर द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो कर ही रहे हो, राइट। दैट फाइनल प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज अ डिफरेंट कोर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट ही हो, प्रोजेक्ट करने का वो एक अलग सब्जेक्ट ही है 100 मार्क का। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए टीम वर्क है क्या? यस, ऑब्वियसली इट इज देयर। 10th one is communication. Yes, communication is there. You are presenting, you are demonstrating your project to me, everybody. So everybody is unmuting themselves, right, herself or himself, and he is telling, he is explaining, she is explaining her, her project, right. If you are able to explain the project, so that is something called as a communication. Your communication must be strong, right. So even though we are saying your English must be powerful, right, and so on and so forth, still your expressions are going to be carry a lot, right. इसका मतलब ऐसा नहीं है बड़े बड़े वर्ड मैंने यूज किया, सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसका कम्युनिकेशन का फायदा क्या है, राइट। वैसा नहीं चाहिए। व्हाटएवर यू आर एक्सप्लेनिंग, सामने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई ये क्या है। आर यू गेटिंग इट? सो कम्युनिकेशन, हाउ आई कैन जज थ्रू योर प्रेजेंटेशंस, एंड दैट्स व्हाई इन IUE सब्जेक्ट ऑल्सो आई एम टेकिंग प्रेजेंटेशंस, बिकॉज IUE सब्जेक्ट का तो मिनी प्रोजेक्ट है, तो हम लोग को कंपल्सरी रहने का ये अभी थ्योरेटिकली सब्जेक्ट है, इधर आपको टीम वर्क है, ना आपने कभी मिनी प्रोजेक्ट बनाया है, ना कुछ किया है, ना कम्युनिकेशन है। आर यू गेटिंग इट? इसके लिए ये नहीं था पहले। आपको सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट है, ना उसमें आपको कम्युनिकेशन का ज़रूरत है, ना उसमें आपने टीम वर्क कैसे प्रोजेक्ट बनाया है, राइट, ये नहीं था। इसके लिए अभी पूरा कोर्स भी चेंज हो गया। कोर्स इन द सेंस कि पूरा OBE का PBE हो गया, आउटकम बेस्ड एजुकेशन था पहले, वो पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन हो गया। हर एक सेमेस्टर में स्टूडेंट को नया प्रोजेक्ट बनाने का है, हर एक सेमेस्टर में उनको ग्रुप बना के काम करने का है, हर एक स्टूडेंट को उसको प्रेजेंटेशन देने का है। राइट फ्रॉम सेकंड ईयर, each semester they are having mini project, right, that is something like project based education, right। लेकिन कोई सब्जेक्ट जैसे अपना जो सब्जेक्ट है IUT का मिनी प्रोजेक्ट का है, IOE का है, और समथिंग लाइक VDA में आपको मालूम नहीं मिनी प्रोजेक्ट है कि नहीं, बट समथिंग लाइक अगर रहेगा, सो ईच सब्जेक्ट, राइट, सो हाउ कैन आई चेक दैट दिस इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड बाय दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, so this is going to be there।
11th क्या बोलता है पीओ की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, राइट। अगर आपका प्रोजेक्ट और अभी आपका जो सब्जेक्ट है, इज दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, राइट। तो आई विल से यस, थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उधर हम लोग RFID यूज करते हैं क्या, ये करते हैं क्या, हाउ कैन आई मैनेज द प्रोजेक्ट, राइट। एंड इट्स टू बी इंटरडिसिप्लिनरी एनवायरमेंट, मल्टीडिसिप्लिनरी। ITI ने फक्त कॉम्प्युटर घेतलं, कोडिंग चालू केलं, बस इतना, बात खत्म, ऐसा नहीं है। इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट, ऑल टुगेदर, राइट। यू द फोकस ऑन दैट। अगर आपका सब्जेक्ट ये इसमें ये फुलफिल करता है तो PO11 भी वो फुलफिल करता है, ऐसा है। And last is but not the least, a lifelong learning. Whatever you are learning, is it going to be there in your life? So from our subject, I will say yes. अपना सब्जेक्ट आपको लाइफ में आगे जाके कुछ काम में आने वाला है क्या? 100% काम में आने वाला है। अभी आप ऐसा बोलोगे नहीं मेरे को हार्डवेयर में ही नहीं काम करने का, मेरे को खाली कोडिंग ही करने का, फुल स्टैक ही बनाने का है, लेकिन बैकएंड पे अगर वो लोग अगर हार्डवेयर में अगर वो सेंसर से डेटा काम में करते रहेंगे, आप खुद नहीं इन्वॉल्व होते रहेंगे बट वो करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको कभी चांस मिला, आपको बोला कि भाई चलो ये इसमें आपको भी करने का है, इसमें डबल पैकेज है, आना चाहते हो क्या, तो यू विल नॉट से कि नहीं आना चाहता हूँ, यू विल डेफिनेटली गो बिकॉज यू विल हैव द हाईएस्ट पैकेज। इसका मतलब है लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो होने वाला है कौन से भी सब्जेक्ट में, राइट। सो दीज आर द 12 PO ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, ये आपको मालूम होनी चाहिए। Is there any doubt? I am taking 1 minute break. Is there any doubt? डाउट है किसी को? ईशा, हेलो ईशा, आर यू देयर? कळलं तुला POs म्हणजे काय? किती POs असतात सांग बघू, फक्त आकडा सांग, किती POs असतात? Anybody can tell? Neetu, are you there? Hello Neetu. Hello Neetu, are you there? ठीक है, लेट मी कंप्लीट माय थिंग्स। बाद में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट, बिकॉज इस क्वेश्चन आंसर ये आपको होने चाहिए, राइट। क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना ही चाहिए। सो देर आर 12 POs, राइट, दीज आर द 12 POs। नेक्स्ट, प्रोग्राम एजुकेशनल आउटकम ऑब्जेक्टिव, ये क्या, अभी ये है अपने डिपार्टमेंट का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है। हम लोग क्या बोलते हैं, यानी डिपार्टमेंट क्या बोलता है, हम लोग यानी डिपार्टमेंट क्या बोलता है, टू प्रोड्यूस स्किल्ड IT प्रोफेशनल टू कैटर सोशल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स, राइट। यानी हम लोग को ऐसा IT प्रोफेशनल बनाने का है कि जो सोसाइटी और इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स बराबर से सॉल्व करना चाहिए। सो इट शुड बी स्किल्ड पर्सन टू inculcate an ability to implement modern practices with ethical and professional responsibilities, right? Professional responsibilities, you should be able to implement that. To establish graduate as business analyst, system analyst, data scientist and project leader. हम लोग को ग्रेजुएट ऐसा प्रोड्यूस करने का जो बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहिए, सिस्टम एनालिस्ट बनना चाहिए, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो उसके लिए प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम PSO, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा ग्रेजुएट कैसे बनेगा भाई, तो ग्रेजुएट विल बी एबल टू, नंबर 1, यू शुड बी एबल टू अप्लाई एंड इम्प्लीमेंट IT सॉल्यूशंस। जो IT आपने सीखा है, हार्डवेयर सीखा है, सॉफ्टवेयर सीखा है, मोबाइल सीखा है, ये सीखा है, वॉट एवर यू लर्न IT स्किल, so you should be able to solve the real world problems, number 1. This is what the program specific. The second one is what you should be able to identify the social and industrial problems, to provide creative solutions and become a quality asset for society and industry. आप बनने चाहिए,
राइट, थर्ड वन क्या है, डिप्लॉय द सिक्योर सॉल्यूशन यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज। मैंने आपने आइडेंटिफाई किए प्रॉब्लम्स, राइट, इंडस्ट्रियल एंड सोशल प्रॉब्लम्स आपने वो बना दिए है। अभी लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में आपको डिप्लॉय करना आना चाहिए ना, वॉट एवर यू आर डूइंग इट शुड बी डिप्लॉयबल एट द क्लाइंट साइड, यानी लोगों ने आपका प्रोजेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। So these are the three PSOs, right? So I think you should know now what are the POs, how many POs are there, each PO, हर एक PO क्या क्या करता है, right? बाद में there are three PSOs, right? तीन PSO अपने डिपार्टमेंट के हैं, right? There are three PEOs, right? Program Education Outcomes, right? Now you can ask me any kind of question, आप मुझे क्वेश्चन पूछो कि सर आपने जैसे अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आंसर देता हूँ कि सर आपने पीओ बनाए कैसे। आपने बोला कि पीओ बनाए किसने, इंडियन, वी आर अडेप्टिंग दैट, वी आर अडेप्टेड एंड वी आर फॉलोइंग दिस सेम पीओ वॉट एवर इंडिया डिसाइडेड। तो हम लोग ने इधर अपना दिमाग में लगाया कि क्या है, तो बिकॉज इतना अच्छा है उनका पीओ ही इतना अच्छा है कि इसमें और क्या करने का, इट्स गुड फॉर all of us and all the colleges they have accepted that, that's why we have not modified that. Next one, PSO. PSO कैसे बनाया रहेगा, PSO you can see the link is given in the website, link is given in the website. How you know these websites, अभी आप देखो इधर आशीष सर ने क्या लिखा है, dear greetings, kindly give the valuable feedback for on the information technology department PSOs, यानी हम लोग ये इंडस्ट्री से फुलफिल करेंगे, राइट। स्टेक होल्डर्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स, एल्यूमिनाई, एल्यूमिनाई से स्टूडेंट मीन्स यू पीपल, पेरेंट आपके पेरेंट, एम्प्लॉयर, ये लोग बोलेंगे कि भाई ये पीएसओ क्या होना चाहिए, राइट। अब मैंने बोला है पीएसओ अप्लाई एंड इम्प्लीमेंट, जो मैंने इधर देखा था रियल सॉल्यूशंस, इज इट करेक्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी you have to say, student has to say yes, ये बराबर है नंबर 1 पोजीशन में आना चाहिए, ये आना ही चाहिए और ये इम्पोर्टेंट ही है, राइट। पेरेंट भी बोलेंगे ये आना ही चाहिए, स्टूडेंट बोलेंगे आना चाहिए, एम्प्लॉयर बोलेंगे आना चाहिए, एल्यूमिना बोलेंगे आना चाहिए, राइट। PSO2 वॉट एवर आई हैव डिसाइडेड, देन यू हैव टू से स्पेसिफाई अप्रोप्रिएटनेस कि आपको क्या लगता है, राइट। ये थर्ड के लिए क्या लगता है, एंड इफ यू हैव गॉट एनी सजेशंस प्लीज गिव अस, so that we can able to modify the PSO according to whatever data we got it. And first of all, we got all this data and depending upon that we have decided that 3 PSOs ये हम लोग को पहले से ही मिलते आ रहा है, तो इसके लिए based on that we decided the PSOs, right, and which we have displayed on our website. यानी कोई भी बंदा जिसको अगर IT इंजीनियर में लेने का है एडमिशन, राइट, तो IT इंजीनियर का ये PSO है भाई, ये ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स है, ये अपने एजुकेशन आउटकम्स है, ये PSO है, यानी हम लोग हमारा ग्रेजुएट ये ऐसे बनाएंगे। कंप्यूटर का PSO क्या है, अलग है, सिविल का क्या है, अलग है, राइट। उनका कितना है, उनका 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, हमारा 3 है। हम लोगों ने कैसे उसको लिया है, हम लोगों ने बनाया कैसे PSO, हम लोगों ने बनाया एल्यूमिनाई से चार्ट करके, स्टूडेंट से फीडबैक लेके, पेरेंट्स से फीडबैक लेके, एम्प्लॉयर से फीडबैक लेके, ऐसा सब के साथ डिस्कशन करते करते हम लोग को पता चला कि भाई ये 3 PSO थे ना, ये आने ही चाहिए, लाइक दैट, यू नो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू नो, ये PSO बनाए कैसे, PSO हम लोग ने ऐसे बनाए, अभी देखिए PO की कैसे बनाए, ऐसे बनाए, राइट। देन ये होने के बाद में देन आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू यू, लाइक अवर IOE 2020। अभी ये देखो IOE लैब है, IoT थेरी सब्जेक्ट है। ना हाउ वी आर डूइंग द, हम लोग क्या करते हैं बैकएंड साइड पे, वो हम लोग आपको पूरा दिखाते हैं। एक्चुअली ये इट शुड बी ट्रांसफरेबल बिटवीन यू एंड मी, राइट। यू शुड नो इट व्हाट वी आर डूइंग इट, राइट, सो दैट यू पीपल आर कमिंग टू नो कि भाई हम लोग कैसे दिखाते हैं कि भाई आउटकम फुलफिल हो गया नहीं हो गया। सो लेट्स लुक एट डिस्कस दिस क्विकली। तो ये है हमारा एक्सेल शीट, जिधर हम लोग बोलते हैं कि अभी 2021 ईयर है, राइट। मैं आपका सब्जेक्ट फैकल्टी इंचार्ज हूँ, अपना सब्जेक्ट ये है यूनिवर्सिटी कोड इज टेलिंग दैट व्हाट इज अ कोर्स कोड। देखो कोर्स कोड है नहीं, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड,
तो कोर्स कोड ये है। एनबीए नॉर्म के हिसाब से कोर्स कोड ये है। तो एनबीए का कोर्स कोड अलग रहता है, यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड अलग रहता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नाउ अपेयरिंग 65? अभी अपने करंट क्लास में कितने 65 है। नाउ सी दिस कोर्स आउटकम। अब ये कोर्स आउटकम ये हम लोग ने डिज़ाइन किए हैं, हम लोग ने नहीं, मैंने, राइट। कैसे डिज़ाइन किए? इट डिपेंड्स अपॉन योर syllabus. Look at the syllabus. Look at the syllabus. See the syllabus. What syllabus is telling and how you are going to fulfill. So I think that syllabus is there in my website. Let's check that. Syllabus means these experiments are only there. Sorry, the chapter is there. So the full syllabus is altogether over here. But if we actually look at the syllabus, then let's see the syllabus. Syllabus के अंदर देखते हैं so that वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई सीओ कैसे बनाएं। See this syllabus. Syllabus मैं ओपन कर रहा हूँ। This is the syllabus. Now you can look at the syllabus. See this. Internet of everything. ये वाला देखो। Internet of everything. देखो। अभी थ्योरी है ना, थ्योरी के लिए क्या, जैसे मैंने बोला, ओनली इंटरनल असेसमेंट इज देयर एंड द इन मार्क्स, राइट, द यूनिवर्सिटी पेपर, राइट, दैट्स इट। अभी लैब जो है ना, लैब का देखो कोर्स कोड अलग है। दिस इज ITL, दिस इज ITC, कोर्स कोड डिफरेंट है। तो इंटरनेट एवरीथिंग लैब, उसमें देखो टर्म वर्क, ओरल विच इज गिवन इन इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग लैब, वो सब्जेक्ट में हम लोग देते हैं। सब्जेक्ट इवन दो इट्स इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, बट दिस इज थ्योरी, दिस इज लैब, दोनों का कोर्स कोड अलग अलग है, राइट। अभी इफ यू सी दिस नाउ द थ्योरी पार्ट, थ्योरी में ये कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स आउटकम किसने दिए हैं? ये दिए है यूनिवर्सिटी वालों ने। बट अकॉर्डिंग टू माई कंसेप्शन, आई रिड्यूसेस, आई पैच दिस ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स 6 to 4, मैंने इधर 6 दिया है, मैंने 4 में उनको बिठाया प्रॉपरली। ये लोग ने बोला है कि अगर आपको ये इंट्रोडक्शन टू IT टेक्नोलॉजी जो है ना, दिस इज कम अंडर CO1। ये देखो उन्होंने मैपिंग किया है। CO1 यानी क्या? द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू व्हाट अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ IoT, यानी आप अप्लाई कर सकते हो क्या IoT का कंसेप्ट? कर सकते हो, कभी कर सकते हो अगर आपने ये सीखा तो। इट्स वेरी सिंपल, राइट। CO2 यानी क्या? आइडेंटिफाई द डिफरेंट टेक्नोलॉजी, right, and ये can student able to identify the different technology? Yes, when you can apply this, once you will learn this RFID principles, RFID components क्या है, and इसके अंदर भी IO2 का, CO2 का थोड़ा बहुत दिया है, आर्किटेक्चर क्या है RFID का, राइट, लॉजिस्टिक्स क्या है, so and so forth, right. Then CO3 क्या दिया वो लोग ने? apply IoT to different applications, यानी can you apply the different application? If you are saying yes, means you should know it, ना, ये हम लोग ने किया था, प्रोटोकॉल्स किए, सप्लाई चेन में कौन सा RFID यूज करने का, so you can able to apply this knowledge over here. So means you are, this CO3 is mapping with this course module, जो सिलेबस बनता है और जो COs दिए जाते हैं, हर एक कोर्स मॉड्यूल, हर एक चैप्टर वो CO से मैप किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन क्या है? आप एनालिसिस एंड इवैल्यूएट प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन IoT। ये प्रोटोकॉल्स के लिए दिस इज द चैप्टर, वायरलेस नेटवर्क, जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले थे, राइट, और करने वाले हैं, लाइक MQTT, UAP, these are the some protocols, and this is also, here also you will find out many of the protocols where CO4 is mapping। CO5 क्या बोलता है कि डिज़ाइन एंड डेवलप द स्मार्ट सिटी इन IoT। स्मार्ट सिटी आपको बनना चाहिए, आना चाहिए। You should know this particular thing, IPv6, you should know the simulation setup, you should know the performance results, so mobility आपको आना चाहिए, and data analytics वो भी आपको आना चाहिए। You should know the Hadoop, you should know this Apache Uzi, Apache Spark, Apache Storm, like this। तो PO5 and 6 में क्या है? 6 में वो लोग बोल रहे हैं कि analysis and evaluate data received through sensors in IoT, so can you able to analyze it? Yes, तो एनालिसिस कर सकते हैं। तो फॉर दैट वी हैव डन द सो मेनी काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चेफ, देयर इज समथिंग कॉल्ड पपेट, देयर इज समथिंग कॉल्ड पपेट केस स्टडी, हेल्थ मॉनिटरिंग, ये सारे हम लोग तो देखने वाले हैं, राइट। तो दिस इज फ्रॉम द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ओके, सो ये 6 POs है। अभी 6 PO का मैंने क्या किया है? 6 PO का मैंने किया है 4 CO बनाए हैं। पहला CO क्या किया है? इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ IoT एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, यानी मैं क्या किया, ये दोनों को क्लब करके एक
सीओ बनाया, एक ही सीओ बनाया, दो का एक किया। देन डिज़ाइन एप्लीकेशंस यूजिंग RFID, ये मैंने मेरा डाला है इधर, RFID का कोई नाम नहीं था बिकॉज RFID एप्लीकेशंस। सो दिस फुल चैप्टर आई रिलेटेड टू सेकंड सीओ। तो इसके लिए आपने देखा रहेगा हमारा जो पहला जो ये है पहला यूनिट टेस्ट, आई हैव मैप्ड विथ CO1 एंड CO2। थर्ड सीओ मैंने क्या किया है, थर्ड सीओ भी मैंने चेंज किया है बिकॉज एग्जामिन द प्रोटोकॉल्स यूज इन IoT एंड डिजाइन स्मार्ट सिटी। यानी ये दो वायरलेस सेंसर नेटवर्क एंड दिस टू मॉड्यूल्स आई हैव मैप्ड विद द CO3 एंड लास्ट इज द डेटा रिसीव्ड थ्रू सेंसर्स इन IoT। तो लास्ट का जो चैप्टर है इसका थोड़ा बहुत पार्ट है और इसका और मे बी डेटा एनालिटिक्स का, यानी पूरा सिक्स का जो पूरा चैप्टर है, और दिस फुल चैप्टर आई हैव मैप्ड विद दिस CO4। एक बार मैंने ये ऐसा किया, ये कैसे किया मैंने ना, आई डिस्कस विद यू पीपल लाइक प्रीवियस बैच आई डिस्कस विद द स्टूडेंट्स, like I discussed with some industry people, I discussed with another faculties, right? And through them I come to know कि भाई ये मुझे ना ऐसे 4 COs बनाने चाहिए, तो मैंने ये बनाया, right? Now हर एक देखो, हर एक CO मैंने हर एक PO से मैप किया है, you can just see this, and PSO से मैप किया है हर एक CO। ऐसे illustrate of concept of IoT and identify technologies, yes, so PO1 यानी इंजीनियरिंग नॉलेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बाद में आपको प्रॉब्लम एनालिसिस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। नाउ 3 यानी क्या, लार्जेस्ट पॉइंट 1 2 3, राइट। 1 यानी बहुत ही कम कर सकते हैं, 2 यानी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, 3 यानी यस यू कैन कर सकते हैं। 3 यानी क्या, डिज़ाइन। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, खाली आइडेंटिफाई है ना, डिज़ाइनिंग थोड़ा कम लेवल पे है, इसके लिए मैंने 2 डाला है। इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ा कम है तो 2 डाला है। मॉडर्न टूल यूज़ कर सकते हैं, यस 3 डाला है, तो 3 इज अ मॉडर्न टूल। लाइक 6 यानी क्या, इंजीनियरिंग एंड सोसाइटियल प्रॉब्लम्स, कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई दिस, यस। 7th यानी क्या, एक्चुअली एनवायरमेंटल। तो 6 एंड 7 में देखो फर्क क्या है, वापस देखो 6 एंड 7 में, इफ यू लुक एट दिस 6 एंड 7 यू विल कम टू नो 6 एंड 7 सोसाइटी, इंजीनियर एंड एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी। तो एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी तो कुछ है क्या, 7 यानी फर्स्ट के इसमें कुछ मैपिंग है क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं है। 8 यानी क्या, असाइनमेंट में देता हूँ आपको, टीम वर्क है क्या है, बाद में आप ये व्हाट द योर 10th इज कम्युनिकेशन, कैन यू एबल टू प्रेजेंट टू द प्रेजेंटेशन भी में भी उसमें आता है, राइट। 11th एंड 12 ऑल्सो आई हैव मैप्ड दिस, सी यू कैन जस्ट सी 11th एंड 12, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो दोनों है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो मैंने 3 पॉइंट डाला है, यानी मैक्सिमम आपको लर्निंग करने का है ऐसा। PSO1 को भी मैंने मैप किया है। PSO1 you can just, can you able to solve the real world problem, yes, because you are doing the mini project also and you can able to solve this। PSO2 क्या है, तो इंडस्ट्री एंड सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज व्हाट, द प्रैक्टिसेस एंड डिप्लॉय सिक्योरिटी, आप डिप्लॉय कर सकते हैं, यस ये भी कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू इट, अभी मैं वापस नहीं, आप गो थ्रू करो ये देखो CO2 एंड CO3 के लिए मैंने 7 भी मैप किया है, यानी एनवायरमेंटल मैंने बोला है, दिस एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पॉइंट है 7th वाला। सो दिस इज आई मैप दिस पॉइंट विद दिस सेकंड एंड थर्ड, बिकॉज RFID जब भी हम लोग सोल्यूशन डालने वाले तो एनवायरमेंटल का प्रॉब्लम आपको आने का है, और स्मार्ट सिटी भी उसके लिए भी एनवायरमेंट सोल्यूशन है। लास्ट में एनवायरमेंटल कुछ ज़्यादा है क्या, नहीं है, तो मैंने नहीं डाला ऐसा। तो दिस इज हाउ आई मैप दिस यूज एंड यूज। ये सब हम लोग देखो एक कैलकुलेशन करते हैं, पूरा मैपिंग करते हैं, राइट। इधर हम लोग आपको आपका नाम डालते हैं, इधर आपको IA1 का मार्क्स डालते हैं, IA2 का मार्क्स डालते हैं, क्विज का मार्क्स डालते हैं, असाइनमेंट का मार्क्स डालते हैं, राइट। यू नो एंड सेमेस्टर आउट ऑफ 80 आपको कितना मिला लास्ट में, राइट। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो भी मार्क्स डालते हैं। पोस्ट एग्जिट सर्वे जो हम लोग आपसे करवाते रहते हैं, कि आप बोलते हो, दिस इज इनडायरेक्टली, आप बोलते हो मुझे ये लेवल ये 3 में मेरे को आता है, CO1 CO2 CO3 CO4, आप 3 दिया, उसका मतलब है आप खुद बोल रहे हो कि मुझे सब कुछ एकदम परफेक्टली आता है। हाँ भाई मेरे को मालूम है नेक्स्ट लेक्चर है, बिकॉज आई वांट टू वाइंड अप दिस ना, इसके लिए मैं अभी ये बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ। आई नो दिस, थैंक यू फॉर यूर एक्नॉलेजमेंट, राइट। बट दिस इज व्हाट आई वांट टू फोकस यू। इसके लिए मैं मैक्सिमम फटाक से 11:25 के पहले आपको छोड़ूंगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा माय डियर फ्रेंड्स, ओके, राइट। तो आपको जाने के तो आप निकलो इधर से, ओके। तो दिस इज हाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये आपको परफेक्ट लेना चाहिए। और ये जो मैंने आपको दिया है, राइट, आपको मैं बोल रहा हूँ
राइट? ये आपको मैं 100% आपको ये क्वेश्चंस में पूछूंगा, राइट? लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन यू लीव.